Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? Please join everyone so we can start today's class which is all about capital busting. Please join everyone. Please join everyone so we can start today's class which is very important for UGC NET in Management and Commerce. Please join everyone. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. So once again, good evening everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? Today is we starting the lecture that is all about the capital busting. So please do join everyone. So last lecture हम लोगों ने we have been discussed about what we call cost of capital, and before that we have discussed about what is all about the financial management objective functions की बात किया था. तो कैपिटल बस्टिंग से आप देखेंगे हर बार फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट मैनेजमेंट की बात करिए, कॉमर्स की बात करिए ना, एवरी टाइम ना एवरी एग्जामिनेशन यू विल गेट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम कैपिटल बस्टिंग. So this is very important topic. This is one of the important topic for UGC NET in Management and Commerce. So what is all about the capital busting? Capital busting क्या होता है? After this lecture, you'll be able to understand what is all about the capital busting and what are the different techniques and different methods of the capital busting. अगर बेसिक करें, बेसिक मीनिंग की बात करें, व्हाट इज ऑल अबाउट द कैपिटल बस्टिंग? कैपिटल बस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स, रेजिंग द फंड्स and efficiently allocating the resources to those capital projects which are expected to generate returns for more than 1 year.
तो कैपिटल बस्टिंग की हम लोग बात करते हैं। कैपिटल बस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है और कि हम लोग किस तरीके से वट एवर द इन्वेस्टमेंट प्लान यू हैव, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेसेस, you are looking for investment in your businesses. So capital busting is the technique of making the decisions for investment in a long term assets. So whenever we are looking for investment in a long term assets, हम लोग तो बात करेंगे वहां पर कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स का फॉलो करते हैं, किस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को यूज करें जिससे हमारा मैक्सिमम रिटर्न आए, वहां पर कैपिटल बस्टिंग का यूज करते हैं। समझ कैपिटल बस्टिंग क्या है? कैपिटल की बस्टिंग करना मतलब वट एवर द कैपिटल यू हैव, कैपिटल मतलब पूंजी की बात करें, वट एवर द कैपिटल यू हैव, how those capital you are using the different projects. मान लीजिए कि एक भाई 100 रुपए है, you just need to invest those 100 rupees in a project 1, project B, project A, B, C. So किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा? You just need to be look on this matter. आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट से ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं, and you are going to be investment on those only product. तो capital busting is the technique of making the decisions for investment in a long term assets, and it refers to the process of planning of capital project, raising the funds and efficiently allocating the resources to those capital projects which are expected to generate return for the more than 1 year. हम लोग लंबे समय के लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएशंस की बात कर रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट में भी आर गोइंग टू बी मेक सर्टेन इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको 1 साल से ज्यादा के लिए रिटर्न मिलने वाले हैं। तो कैपिटल बस्टिंग्स में आपको व्हाट आर द डिसीजंस यू नीड टू बी टेक इन कैपिटल बस्टिंग। सबसे पहला मेन मुद्दा होता है कि कितना फंड की रिक्वायरमेंट है। आपको एबीसी कोई भी बिजनेस करना है, हाउ मच मनी टू बी रेज एंड व्हाट आर द फंड रिक्वायरमेंट। क्योंकि कोई भी व्यापार करना चाहिए, कोई भी बिजनेस की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर प्लानिंग फॉर एनी बिजनेसेस, यू जस्ट नीड टू बी लुक ऑन दिस मैटर, हाउ मच मनी यू आर रिक्वायरिंग, हाउ मच, इफ सपोज दैट यू हैव द 50 rupees and you are requiring the 80 rupees to start your businesses, that means you just need to look on this matter, you just need to raise the 30 rupees. So what are the, how much money to be raised and what are the fund requirement, you just need to be look on this matter. And what could be the sources of finance. Sources of finance क्या है, whether it's a long term sources, whether it's a short term sources, हमारे source of finance, आप इक्विटी के थ्रू you just want to be raise the money through the इक्विटी की तरफ बात करेंगे, प्रेफरेंसेस की बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, whether it's a combination of equity and debt, it's only equity, it's only debt, you just need to be look on this matter कि what could be the sources of finance, because as we know there are numerous number of the sources of finance are available as of now in a present scenario, but we are just trying to be raise the fund from that particular sources where you just need to be repay the minimum interest, you just need to repay the minimum return to those investors. But you are looking for the easier investors, you are looking for the जहां पर सबसे सरल, सबसे easier you can raise the fund. So what could be the source of finance? You just need to be look on this matter and allocation of the money between different project over a time periods. मतलब एक समय में आपके पास 1, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स है, उन 4 प्रोजेक्ट्स में आपको किस में पैसा इन्वेस्ट करना है ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट हम लोग उसी में करेंगे जहां पर हमारा रिटर्न आए। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। हम लोग कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पर हमारा रिटर्न बहुत लेट आ रहा है, रिटर्न यू आर गेटिंग द वेरी लेस लो रिटर्न। सो जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, वी जस्ट नीड टू इवेल्युएट द ऑल द प्रोजेक्ट। हम सारे प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट करेंगे एंड आफ्टर दिस विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से प्रोजेक्ट्स में हमारा मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है और उसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ द मनी बिटवीन द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओवर टाइम पीरियड्स। देखिए कभी भी आप देखिए कि बीइंग अ बिजनेसमैन यू ऑलवेज हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ द ऑप्शंस विद यू, बट यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं जिससे आपको इजीली रिटर्न आपका रिकवर कर सके, मैक्सिमम रिटर्न आए हमारा। तो कैपिटल बस्टिंग समझ के बेसिक कैपिटल बस्टिंग है, इट इज अ टेक्निक ऑफ making the decisions for investment in the long term assets. तो long term assets में whenever you just want to make certain investment, वहां पे capital busting की techniques हैं वो role play करती हैं. It is a process of planning of capital project, raising the funds and efficiently allocating the resources to those capital projects which are expected to generate return for the more than 1 year. बात करेंगे what are the different methods of evaluating the investment return. पहला होता है traditional method, simple है। ट्रेडिशनल मेथड में पहला होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, जिसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात भी करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जी बोलते हैं।
तो ट्रेडिशनल मेथड इट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रादर देन द कैश फ्लोज की आज बात नहीं करते, वट एवर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यू हैव, on the basis of those accounting information we are taking the decision. Under this there is only one method called average rate of return method. इसके अंदर accounting के अंदर एक average rate of return method होता है, उसकी बात करेंगे. अब average rate of return method क्या होता है? This method does not consider time factor. Time factors की बात नहीं करते. Average rate of return is defined as the ratio of net average annual income from the project to the average investment. मतलब सिंपल है कि कितने साल में पैसा रिकवर कर लेंगे. सपोज दैट यू आर इन्वेस्टिंग द 100 रुपीज इन ए प्रोजेक्ट, सो व्हाट विल बी द एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न. एवरेज रेट हमारी 5% होगी, 10% होगी, 20% होगी, जिससे आप ओवरऑल पैसा आप कब रिकवर कर पाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू बी रीच ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट. तो एवरेज एनुअल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ऑल ईयर्स बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इनफ्लोज. सिंपल है. A net average annual income is calculated by subtracting the average depreciation and tax from the annual income. उसकी बात नहीं करेंगे, अब ये वाली लाइन याद रखिए. Average annual income can be calculated by the dividing the total annual income by all by the years by the number of years of the inflows की हम लोग बात करेंगे. तो ARR का नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, और इंटू 100 करेंगे तो हमारा एवरेज रेट ऑफ, मतलब एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपकी 100 रुपए है. मान लीजिए 100 रुपए है आपकी. एवरेज इन्वेस्टमेंट 20 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे कितना टाइम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारी 500% है, 200% है, 800% है, कितना है हमारा. आगे बात करते हैं. इस दूसरा आता है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन by the initial investment plus salvage by the 2 into 100. ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, आपको ध्यान नहीं देना है. पुराना वाला फॉर्मूला याद रखिएगा. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में कैसे निकालना है आपको? एवरेज इनकम, एवरेज एनुअल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ऑल द इयर्स बाय द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इनफ्लोज. एवरेज डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन. एवरेज डेप्रिसिएशन क्या, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन 100 रुपए थी, स्क्रैप वैल्यू अभी 20 रुपए बची है, और अभी एस्टिमेटेड लाइफ मशीन की कितनी बची है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. मुद्दा आता है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे करेंगे. अब एक्चुअल ARR इज हायर देन द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न, देन प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड. आपने सोचा था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारा मान लीजिए कि सपोज दैट 100 था. अगर आपका रेट हमारी 100% थी, If AR is greater than the predetermined rate of return, जो पहले से प्लान करके रखा था, अब 100 दिन में, 200 दिन में, 300 दिन में, 400 दिन में, whatever the plan you had and whatever the planning you have done so far at the initial stage of planning, तो हमारे हमने मान के चला गया था 2% रिटर्न आएगा, 4% रिटर्न आएगा, और उसको हम लोगों ने उससे ज्यादा AR is higher than the predetermined rate of return, then project would be accepted. It's quite easy to understand. आगे बात करते हैं. If actual AR is lower than the predetermined rate, भाई अगर 5% सोचा था, ARR हमारा 3%, प्रोजेक्ट वुड बी रिजेक्टेड. सिंपल है. सो क्वेश्चन यही से पूछते हैं. एक्सेप्टेड रिजेक्टेड क्राइटेरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. If actual ARR average rate of return is higher than the predetermined rate of return, the project would be accepted. If actual ARR is lower than the predetermined rate of return, the project would be rejected. It's quite easy to understand. तो पहला हो गया ट्रेडिशनल मेथड्स में अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन सा था? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स. दूसरा क्या है? कैश फ्लो क्राइटेरिया. ये देखिए इसमें नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्या मतलब है इसमें? इट इज बेस्ड ऑन द कैश फ्लोज की बात करते हैं. इसमें एक नॉन डिस्काउंटिंग मेथड होता है जिसके अंदर बात करते हैं पे बैक मेथड्स की. अंडर दिस देयर इज ओनली वन मेथड दैट इज कॉल्ड पे बैक मेथड. पे बैक पीरियड क्या होता है? This method is called as a payout method. Calculate the total in time period in number of years required to return the original investment. आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था. How many years it will be take to recover those 100 rupees? उसको बोलते हैं payback period. Simple है बहुत. This method is also called payout method since calculate the total time periods. Total time periods मतलब number of years we are talking about. And requires to return the original investment. तो फर्स्ट मेथड, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द प्रोजेक्ट जनरेट इक्वल कैश इनफ्लो ईच ईयर. मतलब तभी कर पाएंगे हर साल. अगर आपका कैश इनफ्लो इक्वल आ रहा है, मतलब 20 रुपए आ रहा है एक साल, तो अगले साल भी 20 रुपए आ रहा है,
तो इजीली यू कैन, आप इस मेथड को फॉलो करके समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपया खर्चा किया, इन्वेस्ट किया है, तो 20 रुपया हर साल इक्वल आ रहा है, तो 5 साल में आपका पे बैक पीरियड क्या हुआ, 5 ईयर। 5 साल में आप पूरे पैसे को क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो सिंपल है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द नेट कैश इनफ्लोज पर ईयर। ठीक है, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, नेट कैश फ्लोज हमारा कितना आ रहा है, मतलब 100 रुपए आपने लगाया था, हर साल 20 रुपए कमा ले रहे हैं आप, हर साल 20 रुपए कैश आउटफ्लो आ रहा है, इसमें मतलब टोटल 5 ईयर लगेगा। सिंपल है, बहुत टेक्निकल नहीं है यहाँ। सेकंड मेथड की बात करेंगे तो इन दिस केस, इन केस ऑफ प्रोजेक्ट yielding cash inflow in varying the amount, payback period can be obtained through the cumulative total of annual returns. Payback period is equal to number of years immediately preceding the year of final recovery की बात कर रहे हैं, प्लस बैलेंस अमाउंट स्टिल टू बी रिकवर्ड, कुछ ऐसा अमाउंट है जो भी रिकवर्ड करना है बाय द कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फाइनल रिकवरी। ठीक है, तो पेबैक पीरियड्स में जो सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड की बात की वो सिंपल था। अगर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट यील्डिंग कैश इनफ्लोज इन वैरिंग अमाउंट, मतलब हर साल आपका जो कैश इनफ्लो है, कभी 20 रुपए आ रहा है, कभी 30 रुपए आ रहा है, कभी 15, कभी 8, तो उस इन दोस कंडीशंस, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस, हाउ विल यू गेट इट द पेबैक पीरियड। तो नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी, उसकी बात करेंगे, प्लस बैलेंस अमाउंट स्टिल टू बी रिकवर्ड, जो ऐसा अमाउंट अभी रिकवर करना है बाय द कैश इनफ्लोज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। ठीक है, अब बात करते हैं, इफ द एक्चुअल पेबैक इज लेस देन द प्रीडिटरमाइंड, प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड। आपने मान के चला था कि 5 साल में हम लोग रिकवर कर लेंगे पैसा, आपने रिकवर कर लिया 4 साल में, तो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्ट होगा। फायदा है ना, आपने सोचा था कि 5 साल में आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचेंगे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, बट व्हाट एक्चुअली यू हैव डन, यू हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर थिंग्स विद इन द 4 ईयर, so that means you are going to be accept that particular projects। तो अगर paybacks is less than the predetermined paybacks, पहले से मान के चला 4 साल एक्सेप्ट आपका, और आपका फाइनली आ रहा है 3 इयर्स आ रहा है हमारा, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर उससे ज्यादा आ रहा है, इफ द एक्चुअल पीवी इज मोर देन द प्रीडिटरमाइंड पीवी, देन द प्रोजेक्ट वुड बी रिजेक्टेड। सिंपल, वो तो होगा ट्रेडिशनल मेथड्स। आगे बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की। व्हाट इज ऑल अबाउट द मॉडर्न मेथड्स में। मॉडर्न मेथड्स में सबसे पहला आता है हमारा डिस्काउंटिंग मेथड्स। डिस्काउंटिंग में आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, अंडर दिस मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इज कैलकुलेटेड एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो की बात करते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना। द डिफरेंस इज कॉल्ड एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है, तो इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टीवी दूसरा क्या है, टीपीवी माइनस सीवी होता है। तो in case of different annual returns over the certain years, the rate of interest, total present value of income streams can be calculated। अगर आपको हर साल एनुअल रिटर्न अलग अलग आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है, तब क्या करेंगे, टीपीवी क्या होगा, R1 प्लस 1 प्लस R प्लस R2 प्लस 1 प्लस R का स्क्वायर, R3 प्लस 1 प्लस R3 का क्यूब। तो ऐसे जितने साल हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उसका हम आराम से निकाल लेंगे। सिंपल है। अगर हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। एनपीवी इक्वल टू 0 होगा तो इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड। और अगर एनपीवी लेस देन 0 होगा, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। सिंपल है ना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अंडर दिस मेथड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड द कैश इनफ्लो इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू में ऑफ आउटफ्लो माइनस कर देंगे, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू बच जाएगा। अगर एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। इक्वल होगा टू 0 होगा, इट कैन बी एक्सेप्टेड, इट कैन बी रिजेक्टेड। इफ इट्स लेस देन 0, इट शुड बी रिजेक्टेड। सिंपल। जहां पर भी कोई दिक्कत लगे, यू may ask, you can send the message, I'll revert you back। नेक्स्ट हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। डिवाइड करना है यहाँ पे, कैश इनफ्लो 100 रुपए आ रहा है, प्रेजेंट कैश आउटफ्लो हमारा 80 रुपए आ रहा है।
तो 1.25 हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1, द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड। सीधी सी बात है, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आपका एक से ज्यादा कब होगा, जब हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा ना। अगर मान लीजिए ऊपर वाला जी 100, अगर नीचे 120 है, आउटफ्लो 120 का है, इनफ्लो 100 का है, तो कहाँ आएगा, तो कम ही आएगा आपका। तो अगर आपका इनफ्लो है 500, आउटफ्लो है हमारा 200, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा, 2.5 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी मोर देन 1। मोर देन 1 होगा, प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेड करेंगे, लेस देन 1 होगा, प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्ट कर देंगे। अगर इक्वल आता है तो हमें सोचना पड़ेगा प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। फाइनेंशियल कंसिडरेशन को लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड वी कैन रिजेक्ट द प्रोजेक्ट ऑल्सो। सेकंड लास्ट इज ऑल अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स क्या होता है, आपको देखना पड़ेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो। दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इक्वेट द टोटल आउटले ऑन द प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश आउटफ्लोज की बात करते हैं, ठीक है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल। दिस इज द रेट व्हिच इक्वेट द टोटल आउटले ऑन द प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट with the total net present value of annual cost outflow, annual cash outflow। सिंपल है। इनका कहना है कि IRR method says so long as internal rate of return is greater than the market rate of interest, it is always profitable to borrow and invest। अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने पास से पैसा लगा रहे हैं, उससे कम रेट पे आपको मार्केट से पैसा मिल जा रहा है, तो इफ IRR इज ग्रेटर देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में आयुषी बता रहे हैं अभी, अगर मार्केट में यू आर गेटिंग द लोन एट ए रेट ऑफ 6% एंड IRR हमारा आ रहा है 8%, तो यही है कि इट्स ऑलवेज प्रॉफिटेबल टू बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट, यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट, ठीक है। ARR में ये है ना कि अगर हमारा ARR ही पूछ रहे हैं ना, यस, ARR अगर प्रीडिटरमाइंड रेट है, प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड। मतलब एनुअल आपका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, आपको लग रहा था कि 5 साल में पैसा आप रिकवर कर लोगे, आपने पैसा रिकवर कर लिया, ARR हमारा कितना आ रहा है, इज ग्रेटर देन द प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा आ रहा है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर लोअर देन द प्रीडिटरमाइंड रेट है, तो प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्टेड होगा। जो हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रही है, समझिए, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारी प्रीडिटरमाइंड से ज्यादा आ रही है। प्रीडिटरमाइंड आपने सोच चला था कि मेरी रेट आएगी 5%, बट आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ रही है 8%, तो क्या मतलब है, प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेड होगा, मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। बट आप मान के चला जाए कि 5% आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगी, आप 5% एवरेज रन करेंगे मार्केट में, बट कहीं रन कर रहे हैं आप 2% से 3% से, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिक इतना ही है। कैपिटल बस्टिंग में नोट्स हम PPT डाल देंगे, 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तीनों PPT अभी तक की नहीं भेजा, तो आज हम तीनों शेयर कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स फॉर कैपिटल बस्टिंग। कोई डाउट हो तो बताइए। फॉर्मूला ये याद रखिएगा, NPV इक्वल टू ठीक है, RN अपॉन 1 प्लस R माइनस N की बात कर रहे हैं। NPV हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल n हो गया हमारा, वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीगर हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीगर। ठीक है, तो RN या CN की बात कर रहे हैं, वो हमारे कैश फ्लोज की बात हो गई हमारा। और R हमारा क्या हो गया, स्मॉल r हमारा क्या हो गया, स्मॉल r इज ऑल अबाउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं।
आया में सिंपल समझिए, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी ज्यादा आ रही है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ऐसी जगह, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, मार्केट से पैसा बोरो करिए और इन्वेस्टमेंट करिए, सिंपल है. दिस मेथड इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो. दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट द टोटल आउटले on the project or cost of investment with the total net present value of capital inflows. तो IRR का मतलब है कि आप किस तरीके से मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपकी अगर ज्यादा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ऐसे में क्या करिए, मार्केट से पैसा बोरो करिए और इन्वेस्टमेंट करिए रादर देन इन्वेस्टिंग योर फंड. मतलब एक दूसरा ये भी देख सकते हैं कि आप एक दूसरा एग्जांपल याद रखिए कि आपको कोई एक बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप, एक कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस से आप देख रहे हैं रिटर्न कितना ज्यादा आ रहा है. अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिटर्न ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए कि आप एक दुकान चल रही थी, एक शॉप चल रहा था आपका, दूसरी शॉप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप, प्लान कर रहे हैं कि उससे हमको 100 रुपए मिलेगा. आपको लग रहा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करेंगे थोड़ा, अगर इसमें 50 रुपए लगा के आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग द मोर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रादर देन स्टार्टिंग योर न्यू बिजनेस. तो व्हाट एक्चुअली यू जस्ट नीड टू डू कि यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. आप अपने पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन स्टार्टिंग योर न्यू बिजनेस. समझ गए कि अगर इंटरनल बिजनेस से अगर प्रॉफिट लग रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, तो वी शुड मोर फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. इट्स क्वाइट इजी एग्जांपल है. कॉर्पोरेशंस मतलब एक कोई कंपनी है वो इवेल्युएट कर रही है इन्वेस्टिंग इन न्यू प्लांट वर्सेस द एक्सटेंडिंग इन एग्जिस्टिंग प्लांट. मतलब हम लोग एक आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसको एक्सटेंड कर लीजिए या नया प्लांट एग्जिस्ट कर दीजिए आप. तो आपको लग रहा है कि आपको जो नया प्लांट स्टार्ट करोगे उसमें आपको रिटर्न कम आने वाला है, अगर आप 100 रुपए अपने पुराने प्लांट पे लगा दोगे ज्यादा रिटर्न आ रहा है. उन सब चीजों की इसमें हम लोग बात कर रहे हैं. So anybody is having a doubt, please do tell me. So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.